خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اسما کے والد قاتلوں کے خلاف کارروائی جاری، دہشت گرد چار دیواری پامال کر کے خوف پھیلانا چاہتے ہیں۔ مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان مینا ماجد کی نیوز کانفرنس، کہا بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کی ڈھکی چھپی نہیں چلے گی، دہشت گردوں کا بیانیہ اب نہیں بکے گا، کسی کو بھی بلوچستان کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، بلوچستان میں کسی کو امن خراب کرنے نہیں دیں گے، بلوچستان کے غیور بلوچوں کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے دشمن ہیں۔ میں حکومت بلوچستان کی جانب سے متاثرہ خاندان کی دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتی ہوں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ اس بزدلانہ حملے میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور بلوچستان کے امن کے خلاف سازش کرنے والوں کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بلوچستان کی عوام، آج ہم تمام خواتین پارلیمنٹیرین دہشت گردوں کے خلاف جو دہشت گردی بلوچستان میں کر رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے۔ امن، ترقی اور تعلیم کی خوشحالی کا ہمارا سفر اسی طرح جاری رہے گا۔ ہم بلوچستان میں کسی بھی تنظیم اور کسی بھی علاقہ یوم آزادی پر لاہور کے لبرٹی چوک میں عوام کا سمندر پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا آزاد کشمیر میں بھی یہی منظر دیکھنے کو ملا۔ دیکھی تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا، سمندر تھا ایک عوام کا لاہور میں جو پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، پاکستانیوں کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ تو جو لوگ پاکستان کے خلاف عزائم لے کر نکلے تھے، آزاد جموں کشمیر کے عوام کو پاکستان کے عوام سے یا پاکستان سے لڑانے کی سازش کرنے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست فاش دی اور یہ بہت ایک خوشائن بات ہے۔ میں نے جس چیز کو آبزرو کیا جلسوں میں، ایک تو بڑا اچھا ایک واقعہ ہے جس کو میں اکثر یاد کرتی ہوں۔ جب ہم ظاہر ہے بہت دیر بعد آزاد کشمیر گئے تو مری سے میں اور میاں صاحب ہم ایک گاڑی میں بیٹھے تھے، تو ہم مظفر آباد کے جلسے میں جا رہے تھے، وہ ہمارا پہلا جلسہ تھا اور کیونکہ بہت دیر سے وہاں پر سیاسی سرگرمی ہوئی نہیں تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا۔ راولا کوٹ سے خبر ہے، کلدم ایکشن کمیٹی کی پولیس چوکی پر فائرنگ اور کریکر حملہ، ایف سی اہلکار زخمی۔ راولا کوٹ میں کلدم ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں نے پولیس چوکی پر جدید اسلحے اور دستی بم سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایف سی کا ایک اہلکار شدید زخمی ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق حملاوروں کی جانب سے کی جانے والی شدید فائرنگ اور گرنیڈ حملے میں فرنٹ ایئر کانسٹیبلری کا اہلکار مشتاق زخمی، جسے فوری طبی امداد کے لیے سی ایم ایچ راولا کوٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران راولا کوٹ کے نواحی علاقے میں قلدم تنظیم کے مسلح حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے 5 اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام نے حالیہ انتخابات کے کامیاب انعقاد کے ذریعے قلدم تنظیم کے منفی پروپیگنڈے اور پرتشدد روش کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ احمد پور شرقیہ جماعت اہل سنت کی جانب سے استقبال ربیع الاول ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سینکڑوں تعداد میں شرکاء نے شرکت کی۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز بشیر احمد مغل۔ جی بشیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج یکم ربیع الاول کے موقع پر احمد پور شرقیہ میں جماعت اہل سنت کی جانب سے استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں ریلی نکالی جا رہی ہے۔ ریلی کے شرکاء ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے جی آج کی ریلی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح رب کائنات پوری کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے، اسی طرح اپنے محبوب کے بھی کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ربیع الاول کے آنے کے موقع پر آقا کا مہینہ ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ الحمدللہ یہ جو حضرات نکلے ہیں تو یہ اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ نکلے ہیں اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کل پاکستان کا دن گزرا،
वो पाकिस्तान जो हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन की बरकत से बना। और इसकी इब्तदा आज पहली दफ़ा अहमदपुर शर्किया में रैली की सूरत में मस्जिद अली से चौक मुनीर से जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा इसको कामयाबी और कामयाबी से जी माहर सही सब क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि 14 लाख की आबादी से रश्क करते हैं हम लोग अपनी किस्मत पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने प्यारे महबूब की आमद पर इस्तकबाल के लिए चुना है। और हम ये पैगाम देना चाहते हैं तंजीमात जमात अहले सुन्नत, हम इंशाअल्लाह या रसूलुल्लाह के परचम के तले एक हैं। जोश नजर आ रहे हैं कि हजूर की आमद मरहबा के नारे भी लगाए जा रहे हैं जी। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 4 मन से जायद मुर्दा और मुजरे सेहत गोश्त की सप्लाई नाकाम। रात के बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ होटलों को 4 मन से जायद मुर्दा और सड़ा हुआ गोश्त सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान के मुताबिक दिलीपुर रोड पर एक गाड़ी की तलाशी के दौरान 4 मन से जायद मुर्दा गोश्त बरामद किया गया, जिसे वेटनरी डॉक्टर के मुआयने के बाद इंतहाई मुजरे सेहत करार देकर तल्फ कर दिया गया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद का कहना है कि मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा। इख्तलाफ वहां जन्म लेता है जहां अवाम को इनका हक और सहूलत दहलीज पे ना मिले। पंजाब में मरियम को बताओ हेल्पलाइन के जरिए 24 घंटे में मदद पहुंच रही है। यही एहसास खिदमत अब आज़ाद कश्मीर में भी देखना चाहती हूँ। नवाज शरीफ ने तरक्की का रास्ता, रोड मैप और एक मजबूत टीम दी। आज हम इसी विरसे को आगे बढ़ा रहे हैं। पंजाब में आके रिहाइश इख्तियार करते हैं अपने रोज़गार के लिए। पंजाब में मैंने एक मरियम को बताएं हेल्पलाइन शुरू की है। आपको मुझे बता के ये खुशी होगी कि किसी को अगर व्हील चेयर चाहिए, किसी को अगर हेयरिंग एड चाहिए, किसी के घर में अगर राशन नहीं है, किसी को इलाज चाहिए और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, आप सिर्फ उस पोर्टल पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें या कॉल करें, 24 घंटे के अंदर अंदर आपके घर पे मदद पहुंचती है। तो ये जो पंजाब में आपने यौम आज़ादी की सेलिब्रेशंस देखी हैं, वो लोगों की पार्टिसिपेशन इसलिए भी है कि लोगों को ये पता चल रहा है कि उनकी फलाह का काम हो रहा है, कोई है ऐसा जो उनके बारे में सोच रहा है। मैं ये सेंटिमेंट आज़ाद कश्मीर में अब देखना चाहती हूँ। और बहुत बड़ी मुझे एक ऑनर है मेरे लिए कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है कि मरियम नवाज अब उस लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं या मरियम नवाज वो काम कर रही हैं। तो मैं आज़ाद कश्मीर की 2 ख़वातीन का बराह रास्त नशिस्तों पर कामयाब होना खुशाइंद है। नवाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर कानून साज असम्बली में ख़वातीन को देखना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, आज़ाद कश्मीर की आवाम ने दंगा फसाद, हड़तालों और इंतशार के बजाय वोट की ताकत से तरक्की और बेहतरी का फैसला किया। मुश्किल हालात में भरपूर टर्नआउट जमहूरियत की बड़ी कामयाबी है। और खुशी है इस बात की कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एक बेहतरीन फ़ैसला किया। बहुत मुश्किल हालात में अपनी बेहतरी का फ़ैसला किया, अपनी तरक्की का फ़ैसला किया। दंगा फसाद, कत्लो गारत, खून खराबा, प्रोटेस्ट बंद करा दो, दुकानें हड़तालें करवा दो, उसको आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वोट की ताकत से एक बहुत बड़ी शिकस्त दी। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इन हालात में इतना बड़ा टर्नआउट। नासिर हुसैन शाह का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल, खालिद मकबूल सदीकी को ज़हनी दबाव का शिकार करार दे दिया। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, खालिद मकबूल सदीकी की गुफ्तगू से वाज़ेह है कि वो शदीद सियासी तन्हाई और ज़हनी दबाव का शिकार हैं। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि मुत्तहदा की नाम नेहाद क़यादत जब भी मीडिया के सामने आती है तो शदीद फ्रस्ट्रेटेड नजर आती है। कराची की आवाम अब इनके माजी के चेहरों को अच्छी तरह पहचानती हैं और इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा, फारूक सत्तार मौजूदा मुत्तहदा के 12वें खिलाड़ी हैं। सिंध कभी तकसीम नहीं होगा, लेकिन MQM को मजीद तकसीम होता हुआ जरूरी है। देख रहा हूं, सूबाई वजीर ने वाज़ेह किया कि कराची के शहरी अब नफरत और तासुब की सियासत को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तरक्की के सफर के साथ खड़े हैं।
रिनालर खुर्द में पुलिस मुकाबला, एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, दूसरा फरार। रिनालर खुर्द में थाना सदर की हदूद के करीब पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक मुलजिम अपने ही साथियों को गोली का निशाना बनाकर मारा गया। पुलिस राय के मुताबिक चक नंबर 13 1L के करीब मुसल्ला डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर अहलकारों ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि इसका साथी रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकला। पुलिस ने फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को खराजे तहसीन पेश करती हूँ। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में आज जो काम हो रहा है इस पर इनकी मोहर है। अगर कोई कह दे कि मैंने इनके साथ 3 साल काम किया तो मैं आंखें बंद करके इसकी तैनाती करती हूँ, क्योंकि अगर कोई शख्स इस भट्टी से गुजर चुका है तो मुझे यकीन है कि वो कुंदन बनकर निकला है। गुजारी है तो मैं आंखें बंद करके उसको पोस्ट पे अपॉइंट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो उस भट्टी से गुजर गया है वो अब कुंदन बन के आएगा। और मैं परसों गई थी सेफ सिटीज, तो प्राइम मिनिस्टर, आपको ये जान के खुशी होगी कि पूरा पंजाब 41 डिस्ट्रिक्ट्स अब सेफ सिटी हैं, CCTV मॉनिटर्ड हैं। और मैंने वहाँ आपको एक ग्लोइंग ट्रिब्यूट भी, जो आप जिसके हकदार हैं, मैंने वो पेश किया। और आपने लाहौर सेफ सिटीज़ को बहुत कामयाब एक ना सिर्फ ये कि एक प्रोजेक्ट बनाया बल्कि एक इदारा बनाया, और वही वजह है कि पूरा पंजाब सेफ सिटी। और हमें क्राइम को ट्रैक करने में आसानी होती है, हमें बारिशों को, सैलाब को, जुलूस को। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन, 3 फूड पॉइंट्स बंद, मुकदमा दर्ज, 3 लाख से जायद जुर्माना। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सियालकोट में फूड फ्रॉड माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी ने 3 फूड पॉइंट्स बंद करके भारी जुर्माना आयद कर दिया। DG फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस ने डस्का और सिटी एरिया में 8 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की। इसी दौरान 2 मन से जायद बदबूदार कुल्फियां, नाकिस अज्जा और 70 किलो गैर मंजूर शुदा पैकिंग मटीरियल तल्फ और जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान डस्टा इंडस्ट्रियल स्टेट के मारूफ स्वीट का मिठाई सेक्शन और सिटी एरिया की एक बेकरी की प्रोडक्शन जालसाजी पर बंद करके मुकदमा दर्ज करवा लिया गया। DG फूड अथॉरिटी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सूबे को महफूज खुराक का गहवारा बनाने के लिए जालसाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। भक्कर में दीवार गिरने से 5 साला बच्ची जा बहाक हो गई। भक्कर के मौजू करम खान किच्ची कला में घर की दीवार गिरने से 5 साला बच्ची मलबे तले दबकर जा बहाक हो गई। अफसोसनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब घर की पक्की दीवार गिरा रही थी। अचानक इसका एक हिस्सा पास बैठी बच्ची पर गिर गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीम मौके पर पहुंची, तहम बच्ची सर पर शदीद चोट लगने के बाइस पहले ही दम तोड़ चुकी थी। अहले खाना ने बच्ची की लाश को अस्पताल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया, जबकि हादसे के बाद इलाके में गम की लहर दौड़ गई। चूनिया के नवाही गांव दिल सिंह में एक नौजवान के साथ मुबैना तौर पर बदफेली का वाकया पेश आया। इस वाकये के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ चौधरी सुफियान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील चूनिया के नवाही गांव टीबी दयाल सिंह में मौजूद हूं। यहां पर एक नौजवान के साथ बदफेली की जाती है। वो नौजवान जिसका जहनी तवाज़न पहले ही ठीक नहीं है। नौजवान मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि इनके साथ बदफेली कैसे की गई और कैसे हुई। ये इस हवाले से नौजवान से बात करते हैं और इनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके वालिद साहब से भी जानते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया। अच्छा, उसने आपके साथ ज्यादती की है? हाँ ठीक है। और आपकी कमीज भी उतारी है? हाँ, तो उन्हें आपदी भी लाई थी। जी, बच्चा जो है उसका पहले ही ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, तो इनके वालिद हमारे साथ मौजूद है। अब उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या हमें बताएंगे। जी अंकल, बताएं कि क्या मामला हुआ। ज्यादती की जो ना दसन लगे शर्म आती पी है। बच्चे के साथ कैसे ज्यादती की और कहाँ लेके गए ये बताएं आप। इतने मैं भेजा जी लीट लैन जा रही थी, लीट लैन लग गया उतों दरिंदे ने फड़िया बाह तो ये सही तो होंगे फिर उत्थे रोला पा जाता। ये नाल टुरिया उत्थे वेली के गली के लिजा के अंदर ताड़ के। तो आपने FIR दर्ज करवाई और पुलिस का आपके साथ क्या तावन पेश है? अभी तक जी पुलिस नहीं आई, रात का वाकया है, अभी तक नहीं आई। जी, उनके वालिद साहब का कहना है कि हमने पुलिस को FIR भी करवाई और अभी तक हमारे साथ कोई तावन नहीं किया गया। हमारा हुकूमत से और मरियम नवाज से ये मुतालबा है, इनको इंसाफ दिलवाया जाए और जो मुल्ज़मान है उनको जल्द गिरफ्तार करवाया जाए।
जी पाक पतन से खबर है। 7 रोज से लापता पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार अख्तर भुट्टो बाजियाब आज अदालत में पेश किया जाएगा। पाक पतन से 7 रोज कबल लापता होने वाला पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार अख्तर भुट्टो बाजियाब हो गया, जिसे आज 164 के बयान के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पेट्रोलिंग चौकी पर तैनात एहलकार अख्तर भुट्टो 8 अगस्त से लापता था, जिसके अगवा का मुकदमा थाना सिटी पुलिस में दर्ज किया गया था। बाजियाबी के बाद मगवी एहलकार ने अपनी इब्तदाई बयान में बताया कि वो तबलीगी जमात के साथ कराची गया था। पुलिस का कहना है कि एहलकार को आज कानूनी कार्रवाई के तहत दफा 164 का बयान कलमबंद करवाने के लिए अदालत के सामने पेश किया जाएगा। सादिकाबाद में शहर अहमदपुर में पैरा फोर्स मुतहरिक नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ट्रांसपोर्ट अड्डा समेत बाजारों से तजावुजात को हटा दिया गया। शहरियों के लिए रास्ता साफ, जबकि इंक्रोचमेंट कायम करने वाले मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग जारी करते हुए पैरा फोर्स इंतजामिया का कहना है कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। दुकानदार अपनी हदूद में रहकर दुकानदारी करें, राहगीरों की मुश्किलात में इजाफा ना करें, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना होगा। पानी चोरी में महकमे अनहार के एहलकार मुलविस अफशा करने वाले को धमकियां। महकमे अनहार पानी चोरी का संगीन स्कैंडल सामने आ गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ मोहम्मद अजमल खान से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड आदम साहबा पुल डग्गा के नज़दीक, जहाँ एक बेलदार जिसको मुख्तलिफ तरीक़ों से टार्चर किया जा रहा है। शकील अब्बासी जो कि एक बेलदार है, अरसा दराज से यहाँ काम कर रहा है, उसकी फैमिली को टार्चर किया जा रहा है। यहाँ जितने भी बेलदार अपना मेट हैं या इसके बहू हैं, वो इसको बार बार टार्चर कर रहे हैं कि आप पानी चोरी करवाएं। मज़ीद उनसे पूछते हैं कि क्या उनके साथ मसाइल पेश आ रहे हैं। जी सर, मैं अब्बासी बेलदार रेगुलेशन हेड आदम साहब के सर मैं काम करता हूँ। सर ये लोग ना चोरी करवाते हैं पानी। सर रात को ना गेज हमारी कुछ होती है जो सब उनके नोटिस में है। सर ये पानी 1-1.5 हिस्सा ज़्यादा चलवाते हैं, इसलिए मैंने इन लोगों को मना किया ऐसा ना करें, लेकिन इन लोगों ने मुझे धमकी कराई है कि आपका मैं तबादला करा देंगे, आपको इधर से रहने नहीं देंगे। सर आसिफ के जी अब्दुल कादिर मेहर साहब सर जी दोनों ना धमकी हम करा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हमसे दूर पड़ रहे हैं, हम कहाँ जाए सर जी, हमारा तो घर भी नहीं। सारा दिन कौन कौन लोग हैं जो आपको टार्चर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं और मारने की धमकियाँ दे रहे हैं? जो मेट है, जो इसके महकमा मेट है ना, ये मेट अमला पूरा मेट बहू साहब हमारे साथ में पहले फ़ोन करता था, प्यार से बोलता था। अब वो ना इन लोगों के साथ मिल गया है। बहू साहब के मेट और बहू का नाम क्या है? बहू हनान सर, हनान सर वो है। मेट गुलाम कहते हैं कि इसका ना तबादला करो। ये सच्चा है ना, हम सच्चे हैं, हमारे खिलाफ हो गया सब लोग। क्या रोजाना लोग भेजते हैं आपको परेशान करने के लिए, आपको जान से मारने की धमकी भी दी है? जी सर जी बिल्कुल। सर रात सर आए थे, रात भी आए थे सर, रात भी परसों रात भी खाले के मेट आया था अपने बेलदार को यहाँ ना गुंडों को यहाँ कोहाड़े लेके। सर मुझे धमकाया डराया सर। ये सारे बहू साहब के फोन आते हैं, लोग बहू साहब के सनिए भेजते हैं कि आप ऐसे करें, हम आपके तबादला कर देंगे, आपकी तनख्वाह रुका देंगे, आपको सस्पेंड कराएंगे। सर बेशक सस्पेंड कराएं, हम आप सर का साथ देंगे सर। कोई एक्शन वो साहब जब आप पानी चोरी करवाने से रोकते हैं तो आपको क्या कहते हैं? सर मुझे धमकियाँ कराते हैं, हमारे साथ आप मिल जाए, मैं सर नहीं मिलूंगा इनके साथ। मैं लिशारी साहब ने मुझे बैठाया हुआ है, ये कोई बाबासी ख्याल करते हैं लोगों का। ये साहब सर जी, मैंने लिशारी साहब ने कहा सर जी मेरे बच्चे घर पढ़ाने इधर मेट आया था, मैं सो रही थी, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं शुगर की मरीज हूँ। इस लोग ना मैं नींद से उठ गई, मेरा उठ के निकल ये मेरे शोहर के साथ ना झगड़ रहे थे। फिर मैंने बोला कि आप इस रात का क्यों तमाशा बना रहे हो। जी, जैसा कि आपने शकील अब्बासी की बात सुनी, उसको रोजाना जो है ना टार्चर किया जा रहा है, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, अरसा दराज से यहाँ बैठे हैं, जबकि सरकारी जगह पे बैठे हैं। पानी चोरी करने से मना करने के ऊपर बहू और मेट रोजाना इनको तंग करते हैं। इनका वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा नवाज शरीफा से अपील है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। ननकाना साहब से खबर है, वज़ीर ममलिकत डॉक्टर शिजरा मनसब ने मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपस्केलिंग ऑफ ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत ननकाना साहब में मानसून शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिजरा मनसब ने फैमिली पार्क में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया, जिसके तहत जिला भर में 50,000 से ज़ायद नए पौधे लगाए जाएंगे। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर राना हमीद, चीफ कंट्रोल
कंट्रोलर मोहम्मद नवाज और दीगर इंतजामी अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर शिजरा मनसब का कहना था, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर ममालिक में शामिल है और इनके खतरनाक असरात से निमटने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने और इनकी हिफाजत करना नागुज़ीर हो चुका है। पाक वतन में 10 साला बच्चे से मुबैना ज्यादती का वाक़या, मुलजिम उमर शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाक वतन के इलाके 13 SP में 10 साला बच्चे के साथ मुबैना ज्यादती का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उमर शहजाद 10 साला बच्चा कयूम को पतंग दिलाने का झांसा देकर फसलों में ले गया, इसे मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। वाक़े के बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई, इसे फौरी तौर पर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। थाना सदर पुलिस ने मुतासरा बच्चे के लवाहिकीन की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। चूनिया में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली का हादसा, खातून जा बहाक और शौहर जख्मी। चूनिया में तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में एक खातून मौके पर ही जा बहाक जबकि इनका शौहर जख्मी हो गया। अफसोसनाक हादसे में जुबैदा बीबी नामी खातून जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि इनका शौहर नजीर शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जिसके बाद इन्हें मजीद इलाज के लिए THQ अस्पताल कोट राधा किशन मुंतकिल कर दिया गया। वेल्सी में भी यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इंस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंप्स में यौम आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें तलबा, असातिज़ा, मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद देखिए वेल्सी से 7 न्यूज़ के नुमाइंदे मियां गज़नफर की ये रिपोर्ट। यौम आज़ादी के मौके पर एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज मेल्सी कैंपस में मुनक़िदा तकरीब में कौमी जज्बे की खूबसूरत अक्कासी की गई। तकरीब में तलबा और असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की, जबकि कॉलेज को सरसब्ज़ हिलाली परचमों और कौमी रंगों से सजाया गया। तकरीब के दौरान तलबा ने मिली नगमे, तकारीर और आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ टैबलो पेश किए। तलबा की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब में मौजूद शुरका के जोश व जज्बे को मज़ीद बढ़ा दिया, जबकि हाज़रीन ने भी तलबा की सलाहियतों को खूब सराहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज तमाम एस्पायर की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यौम आज़ादी के हवाले से जो तकरीब का एहतमाम किया है। इस तकरीब का जो मकसद है वो तलबा में यौम आज़ादी के हवाले से वो मकासद और जोश जज्बा पैदा करना है, जो आगे जाकर वो मुल्क की बागडोर संभालेंगे और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान की तरह जश्न आज़ादी के हवाले से एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बॉयज़ कैंपस में इवेंट कंडक्ट किया गया, जिसका पर्पज़ अपने बच्चों को हकीकी आज़ादी और इसमें इसकी आज़ादी तक आने वाले जो भी हमारे बुज़ुर्गों ने इसमें कुर्बानियाँ दी, जो मुश्किलात जो है बर्दाश्त की, उस पूरे को समराइज़ करना था ताकि बच्चों को ये रियलाइज़ करवा सकें कि आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, हमने इसके पीछे अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ दी हैं और आज हम पे ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करें। और आज के इस इवेंट में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की स्पीचेस, उनकी परफॉर्मेंस, ये सब कुछ बता रही थी कि इंशाअल्लाह ताला यही वो स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले कल में पाकिस्तान की डोर संभालेंगे और इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। थैंक यू। तालीम के साथ साथ गैर निसाबी मस्बत सरगर्मियों से नौजवानों में ज़हनी नशोनुमा पैदा होती है, जो एस्पायर कॉलेज की रिवायत रही है। कैमरा टीम के साथ मियां गज़नफर महफूज, सैमन। आरिफ वाला से खबर शामिल करेंगे। तेज धार आले से 60 साला शख्स की गर्दन काटकर कत्ल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरिफ वाला में कत्ल की लर्जा खेज वारदात सामने आई, जहां नामालूम अफराद ने तेज धार आले से 60 साला शख्स की गर्दन काटकर इसे कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाकया सिटी रोड पर वाज़े क्रिश्चियन कब्रिस्तान में पेश आया, जहां 60 साला बिलाल को नामालूम मुल्जिमान की सिफाकी से कत्ल कर दिया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मकतूल के भांजे की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनकी तलाश और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। बहावल नगर में गंदे पानी के जौहर से बुलंद नामौलूद बच्चा बरामद, वहां गिरफ्त। बहावल नगर में इंसानियत सोज वाकया सामने आया, जहां गंदे पानी के जौहर से थैले में बंद नामौलूद बच्ची की जिंदा हालत में बरामद कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सना नामी लड़की ने नामौलूद बच्चे को पैदा होते ही थैले में बंद कर
کے گندے پانی کے جوہر میں پھینک دیا، جسے اہل علاقہ نے بر وقت دے کر باہر نکال لیا۔ بچی کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹر نے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمہ ثنا کو گرفتار کر لیا۔ لاہور مغل پورہ میں جعلی پولیس مقابلہ، گرفتار ڈاکٹر کو گن پوائنٹ پر دھمکانے کا معاملہ۔ لاہور کے علاقے مغل پورہ میں پولیس کی جعلی وردی پہن کر شہریوں اور نجی کلینک کے ڈاکٹر کی گن پوائنٹ پر حاصلہ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مغل پورہ پولیس کے مطابق ملزم عبدالوحید نے کلینک پر چیک اپ کے لیے آیا تھا۔ ڈاکٹر کے فیس مانگنے پر گن پوائنٹ پر دھمکیاں دے گئے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج کی مدد سے پولیس نے تکنیکی ذرائع استعمال کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ، گولیاں برآمد کر لی۔ SP کینٹ نے کہا کہ گرفتار ملزم پہلے سے ریکارڈ یافتہ اور وردی کا روب ڈال کر لوٹ مار کرتا تھا، جس کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ پیر محل نالے میں گر کر 2 سالہ معصوم بچی جاں بحق، گھر میں ماتم بھرپا۔ پیر محل کے علامہ اقبال چوک کے قریب 2 سالہ کمسن بچی گندے نالے میں گر کر جاں بحق ہو گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق فیصل آباد سے مہمان آئی 2 سالہ بچی فریحہ اچانک نالے میں جا گری، جس سے اہل علاقہ 1 گھنٹے تک اپنی مدد آپ کے تحت تلاش کرتے رہے۔ بچی کو نالے سے نکال کر فوری طور پر THQ ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ پہلے ہی دم توڑ چکی تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس اور DSP موقع پر پہنچ کے ضروری کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جیکب آباد میں پولیس کے 2 مختلف مقابلے، 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ برآمد۔ جیکب آباد میں پولیس نے 2 مختلف کارروائیوں کے دوران فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ برآمد کر لیا۔ ترجمان کے مطابق پہلا مقابلہ تھانہ سول لائن کی حدود بسم اللہ باغ کے قریب پیش آیا، جہاں سنگین مقدمات میں مطلوب ملزم نصیر کو بندوق سمیت گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کے 4 ساتھی فرار ہو گئے۔ دوسری کارروائی تھانہ سٹی کی حدود میں پیش آئی، جہاں پولیس نے فائرنگ کے بعد ملزم زبیر احمد کو 9mm پستول سمیت گرفتار کر لیا، تاہم اس کے 2 ساتھی فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ نکلے۔ پولیس کے مطابق دونوں زخمی ملزمان علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیے گئے، جبکہ فرار ہونے والے دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔